ठीक है, now it has started again. All right. So we did apply first law of thermodynamics on ideal gases, and I have taken you through these common processes and showed you how the first law calculations look for these processes on an ideal gas. So we have gone through isochoric, isobaric, right, isothermal, and in the last class we did also go across adiabatic processes. There was something unique about adiabatic processes that we learned in the last class, that between two states there exists either a reversible adiabatic path or an irreversible adiabatic path. Right? If we start from the same initial state, we can't go to the same final state in a adiabatic manner. Like adiabatic reversible is versus adiabatic irreversible. Okay. And based on this, I had asked you to do certain questions and like use these equations to solve for the unknowns. Right? यहाँ तक हम लोगों ने last class में देखा था. अब notice करना that as part of problem solving, many times the questions that are given to you, उनमें कई बार information like text के form में आपको mention कर देंगे, like the questions that you have solved, as well as many times you will encounter information in form of graphs. So it is important that you understand how these questions or how these graphs are to be read as well as solved for. Okay. Don't try to mug up these formulas, Prithviraj. Like, it's a valid question that you have asked, sir. How do we remember all these formulas? Okay, you will need not remember any of these formulas if you remember the fundamental way in which we discussed first law of thermodynamics over each of these processes. Okay, ये सब generally, and in fact, I should point it out upfront to many of the students. Don't try to ratify these formulas. ठीक है, ये टेबल फॉर्म में मैंने समराइज करके दिया है, एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स काइंड ऑफ गेट इनटू दिस माइंडसेट कि चलो फॉर्मूला मिल गए एक साथ एक जगह, अब रट्टा मारना शुरू कर देते हैं. अगर थर्मोडायनेमिक्स में आपने फॉर्मूला रटना शुरू कर दिया तो दैट विल बी द एंड ऑफ इट. आपको कुछ समझ नहीं आने वाला आगे, बिकॉज दिस इज अ ट्रेलर ऑफ व्हाट एल्स इज गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू. तो आप उतने फॉर्मूलाज याद कर ही नहीं सकते हो. So don't try to get into this habit of कि हम हाँ फॉर्मूलाज मिल गए एक जगह एंड अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा. इनफैक्ट ये फॉर्मूलाज आपको while solving problems याद होते हुए चले जाएंगे. And why they will be something which you will be able to remember and how it can happen. तो उसके लिए स्टार्टिंग का होमवर्क जो मैं आप लोगों को दूंगा, जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी स्टार्ट में दूंगा as part of the homework, don't try to refer to this table, don't try to refer to the notes and just drag and drop the formulas in the questions. What you need to do is, when say let's say you encountered a question, मैंने आपको last class में approach समझाया था, right? If you remember in the last class we had discussed the step by step approach कि सिस्टम आइडेंटिफाई करने का, प्रोसेस आइडेंटिफाई करने का, एनालाइज करने का कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है. ठीक है, इतना तो आपको क्वेश्चन के बेसिस पे पता पड़ जाएगा. देन ये जो प्रोसेस इक्वेशंस एंड फर्स्ट लॉ की इक्वेशंस हैं, ठीक है, डोंट ट्राई टू जस्ट रटोफाई कि हाँ मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस था तो जाके नोट्स खोल के उसमें से एडियाबैटिक का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करा और फिर सॉल्व करना शुरू कर दिया. व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू इज दैट ट्राई एंड स्पेशली फॉर द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द होमवर्क, ठीक है, जो मैं स्टार्टिंग के अभी कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस आपको आज दूंगा या आने वाली क्लास में दूंगा,
उसमें आप कोशिश ये करना दैट यू थिंक फंडामेंटली दैट हाउ दीज फॉर्मूलाज वर डिराइव्ड, ठीक है, हाउ दिस टेबल वाज क्रिएटेड। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट ट्रस्ट मी इट विल बिकम मच मच इजियर फॉर यू। then you will need not be then you need not get stuck on this fact कि हमको इतने सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंट्यूटिवली आपके सामने आपको आते हुए नजर आएंगे। इनमें एक पैटर्न है, द वे इन विच वी आर डिराइव्ड। इट्स जस्ट दैट वो पैटर्न मैंने आपके साथ एक बार शेयर किया है, बट एक बार आप खुद से उस पैटर्न के थ्रू जाओगे तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स मच बेटर, ठीक है। हाँ, वंस लेट्स से यू हैव सर्टेन डाउट, आपने ट्राई करा फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप नोट्स रेफर कर सकते हो कि ठीक है चलो एक बार नोट्स में रेफर कर लेते हैं कि सर ने कैसे इसका डेरिवेशन करा था, ठीक है। तभी मैं यही बोलूंगा कि डोंट गो एंड डायरेक्टली जस्ट पिक द फॉर्मूला कि अच्छा ये फॉर्मूला है और हो गया। एक बार दोबारा उसका डेरिवेशन जो हमने क्लास में करा है उसको रिकैप करना, ठीक है। दिस शुड बी द वे इन विच यू शुड अप्रोच थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा है? दिस इज द वे। कितने बच्चों ने मैंडलोरियन देखा हुआ है यहाँ पे? आयुष मिश्रा, दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन, यू शुड ऑलवेज से नो। ठीक है, सब देखने की उम्र नहीं रही अभी आपकी, पढ़ाई करने पे फोकस करो। एनीवेज, जिसने देखा होगा उन लोगों को शायद वो जोक समझ में आया होगा जो मैंने बोला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। हाँ, सो यस, कमिंग बैक as I said that many times you are going to come across graphs associated with questions. Now ऐसा कोई restriction नहीं है that हमेशा P versus V ग्राफ ही आपको दिखने को मिलेगा, but most commonly processes are represented using PV graphs, ठीक है। Now as a sample understanding, आप लोगों ने gaseous state में वैसे understanding develop करी थी। I have drawn the PV graph and marked these 6 graphs. So you can now let me know which number to be put against which process। फटाफट एक बार ट्राई करो। नहीं नहीं, मूवी नहीं है रे, इट्स अ टीवी सीरीज कॉल्ड मैंडलोरियन, इट इज बेस्ड ऑन स्टार वॉर्स यूनिवर्स। अभी तुम उस क्वेश्चन पे फोकस करो अमन। हम्म, वन क्या रहेगा? फटाफट बताओ, व्हाट विल बी वन? आइसोबेरिक है, ये तो समझ में आया, बट आइसोबेरिक हीटिंग होगा या कूलिंग होगा? एरो का साइन भी नोटिस करो ना, एरो इज शोइंग दैट वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा ना, तो दिस विल बी आइसोबेरिक हीटिंग।
and similarly 2 will be isobaric cooling. ठीक है, what about 3? थर्ड कैसा होगा? हाँ, करेक्ट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. हाँ बोलो यश. तो कुछ नहीं, बाय मिस्टेक हो गया. नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ पाई, दोबारा बोलो. सर बाय मिस्टेक हो. अच्छा अच्छा. Right, third will be isothermal expansion and fourth will be isothermal compression. Right, the arrow shows that volume कम हो रहा है. Fifth and sixth will be isochoric processes. Correct. Expansion आप देखो ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, लेफ्ट टू राइट. ठीक है. फिफ्थ एंड सिक्स्थ पे अगर हम फोकस करेंगे, so in fifth and sixth, as you can see, fifth will be isochoric heating and sixth will be isochoric cooling. ठीक है. ग्रेट. सो आई थिंक ये आप कनेक्ट कर पाए. ठीक है. सी इफ यू आर एबल टू गेट ऑल द आंसर्स. ओके, नाउ लेट मी पुट वन मोर क्वेश्चन. किसी को डाउट है इसमें? 1 और 2 में आप नोटिस करो ना शुभम, 1 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है. वाई एक्सिस पे प्रेशर है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब प्रेशर कांस्टेंट है. सो एज अ कॉन्सिक्वेंस यू कैन से दैट दिस विल बी isobaric, and because of the arrow you can say that volume बढ़ रहा है, तो constant pressure पे volume बढ़ेगा तो ideal gas का temperature बढ़ता है ना, तो one will be isobaric heating. ठीक है. नहीं नहीं नहीं, ऐसा isothermal isn't something like this बाबा. Isothermal processes are hyperbola, like they have this nature. ठीक है. If I draw something like this, ये कौन सा प्रोसेस रहेगा? This will be some miscellaneous process. ठीक है, some random process. हाँ, सिक्स्थ वाले में आप नोटिस करो आयुष, यहाँ पे वर्टिकल लाइन है. वर्टिकल लाइन मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है. करेक्ट. और यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है. द एरो साइन शोज दैट द प्रेशर इज डिक्रीजिंग. दैट मीन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा होगा. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करना. 1 2 3 4 and you will have to map them to the 4 options given on the right hand side. ट्राई करो. Take an attempt, then we will discuss. Same PV graph here. It's a PV graph only. नहीं पार्थ. उल्टा होगा आपने जो बोला है उसका.
नहीं श्रेया, नॉट करेक्ट. All right, so let me ask you, ठीक है, let me ask you that if you can remember the process equations, what was the process equation for isothermal processes? It was PV is equal to constant, and for adiabatic processes it was PV raised to the power of gamma, that was constant, correct? And gamma is something which was Cp by Cv. So gamma is always greater than 1, correct? Because Cp by Cv, and Cp will be Cv plus R. So gamma will be greater than 1. Now, knowing these two process equations, can you now differentiate which graph will be which one? And the hint is focus on the slope and then try to give me an answer. dp by dv will be the slope. अब कोशिश करो, if you can now try to give me an answer. हाँ, इस बार आपका आंसर करेक्ट है पार्थ. हाँ, राइट हर्ष. नहीं नहीं प्रत्याशा, नहीं तन्मय. करेक्ट हर्ष, आपका भी सही है. नहीं शेखर. हाँ पृथ्वीराज, अभी आपका भी ठीक आ रहा है. तो आप यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स करो आप. चलो, dp बाई dv अगर आप निकालोगे तो नोटिस करना, लेट मी जूम आउट, dp बाई dv फॉर isothermal processes it comes out to be minus p by v. ठीक है, अगर आप ये इतना मैथ करोगे, pv कांस्टेंट है, राइट? p इज इक्वल टू के वी या k अपॉन v अगर मैं करूंगा तो dp बाई dv कितना आ जाएगा? माइनस के बाई वी स्क्वायर. एंड k क्या था? pv के बराबर ही था ना, तो माइनस p बाई वी मेरा स्लोप आ गया किसका? आइसोथर्मल प्रोसेसेस का. इसी तरीके से अगर मैं एडियाबैटिक में यहाँ पर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा, आई विल गेट dp बाई dv इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स p बाई v. ठीक है, ये इतनी मैथ आपको आनी चाहिए. देखो, ठीक है, मतलब अब इतना स्पून फीडिंग नहीं कर सकता मैं कि dp बाई dv कैसे आया. ठीक है, स्लोप आपको समझ में आ जानी चाहिए. एंड सिंस गामा इज मोर देन 1, ठीक है, दोनों स्लोप नेगेटिव होंगी, वो बात तो ठीक है, वो हमको ग्राफ से भी समझ में आ रही है, दोनों स्लोप नेगेटिव होंगी. But since gamma is more than 1, then we can say that adiabatic will have a greater magnitude of the slope than isothermal, right? What does this mean? That adiabatic is steeper than isothermal. So between these two curves, the blue and the red, which is more steep? The blue one is more steep. Hence the blue one is adiabatic. ठीक है, यानी कि the 1 represents adiabatic compression and 4 represents adiabatic expansion. ठीक है, and you remember that when we were talking about adiabatic expansion, cooling used to happen. When we were talking about adiabatic compression, like heating used to happen, the fire syringe example.
and hence 2 and 3 will be the isothermal processes. समझ में आया? हाँ, there are other ways other than slope also, like you can determine the same thing by say not talking about slope, ठीक है, but say some other method, some other mathematical way, वो भी चलेगा मुझे, मतलब so depending upon how you want to structure it. हाँ, यहाँ पर मैंने स्लोप का यूज करा है so as to differentiate. I find it a bit more easy. बाकी other ways are also there. ये समझ में आया सबको? इसमें और कोई डाउट है? Anything you did not understand? Okay, great. So now, अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ी मैथ भी कर दी, चलो आप लोगों के लिए, ये जिन जिनको मैथ समझ में नहीं आ रही थी उन लोगों के लिए कर भी दिया यहाँ पे नीचे. ये पीवी रेश टू दी पावर, पीवी इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, और इसमें फिर डीपी बाई डीवी लिख के बता दिया कैसे आया. ठीक है. नाउ अब नोटिस करना, while working with graphs only, there is this very important result that we talk about work done as area under PV graph. Now this is something which comes of a lot of use while solving questions. किस तरीके से आप यहाँ पे नोटिस करना, you remember for a graph, ठीक है, y axis versus x axis ग्राफ होता था, तो उसमें एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से, करेक्ट. ये आपको याद आ रहा है कैलकुलस से, that when you had say a y versus x graph, the area under the graph you used to do the integration. ठीक है, यहाँ x1 से x2 आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये एरिया अंडर द ग्राफ दे देगा, करेक्ट. अच्छा, अब डू यू रिमेंबर that if we have a p versus v graph, then what will the area be? It will be integral p dv. Correct. The area under the graph will be p dv, and work was minus p dv, so at least you can say that area of a PV graph is going to give me the magnitude of the work done. Right, so if you have some p versus v graph, right, and किसी v1 से v2 आप इंटीग्रेट कर रहे हो इसको, right, then this area is going to give you at least the magnitude of the work done. Great. So अब इसको हम apply करते हैं on different processes that we had come across. ठीक है. हाँ, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछोगे that how PDV is equal to work, तो फिर I would know कि आप पिछले lectures मिस करके आए हो. ठीक है. If you are asking me this, that how PDV is work, then I should kick you right out of class right now. बिना पुराने लेक्चर्स अटेंड करे बैठने का कोई पॉइंट नहीं है. Okay, so let's apply this. Let's understand this work done as area under the PV graph for the different processes that we had seen before. So there is isochoric heating. Let's say that is the process. So uska graph kaisa banega? Do you remember the graphs
ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेसेस. अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ग्राफ विल बी अ प्रॉपर representation on the PV graph. But अगर कोई irreversible process था तो you remember that in the first or the second lecture that we had talked about that irreversible processes में you only draw the initial point and the final point. Why can't we draw the entire graph? Because the system and surrounding aren't at equilibrium during the process. So we aren't able to talk about the properties of the system during the process. Correct? हाँ. Now, अब आप यहाँ पे नोटिस करना we had talked about isobaric heating. ठीक है, isobaric heating also let's say if we were doing in a reversible. अच्छा, यहाँ पर वर्क कैसा हो जाएगा ना, एरिया अंडर द लाइन क्या होता है, what will be area under the line? Area under the line will be nothing, it will be zero only. Like आपके जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं वो सेम वॉल्यूम से सेम फाइनल वॉल्यूम है, like the answer of work will be zero only. ठीक है. अच्छा, अगर मैं आइसोबेरिक हीटिंग के बारे में बात करूं, ठीक है, नोटिस करना that isobaric heating, that means pressure is constant, and if I was to draw its graph तो ये कैसा दिखेगा. If it was going from V initial to V final in a reversible manner, then तो you will properly represent a line. But if it was in an irreversible manner, then you will only represent the initial and the final point. However, since P external and P are same, ठीक है, reversible में the answer of work becomes minus P dV, but irreversible में it was minus P external dV. But since isobaric का केस है उसमें P constant ही होता है, external pressure के बराबर ही होता है, तो we find that both the area come out to be same. ठीक है. Now, अब if you remember the question that आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे थे ऑन आइडियल गैसेस, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ की कैलकुलेशंस फॉर आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक प्रोसेसेस आर कमिंग आउट टू बी सेम. ठीक है, तो यहाँ पर वर्क भी आप देख रहे हो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल जा रहे हैं, सेम ही आ रहा है. ठीक है, आइसोकोरिक रिवर्सिबल वर्सेस आइसोकोरिक इरिवर्सिबल सेम आ रहा है. आइसोबेरिक रिवर्सिबल वर्सेस आइसोबेरिक इरिवर्सिबल सेम ही आ रहा है फर्स्ट लॉ की कैलकुलेशंस. बट डू यू रिमेंबर what was the case for isothermal processes? Isothermal में if you remember, ठीक है, तो अच्छी बात है, बट आई एम श्योर दैट अभी तक तो आपको एकदम फॉर्मूला याद नहीं हुए होंगे क्योंकि आपने काफी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे हैं. सो लेट मी show you the formula that we had derived. In case of reversible isothermal, the work came out to be minus nRT ln V2 by V1, and in case of irreversible, the work came out to be minus P external delta V. ठीक है, ये हमने पहले डिराइव करे हुए थे. अगर आपको डेरिवेशन याद नहीं आ रहा है राइट नाउ तो इट्स ओके, बिकॉज आइडियली आई शुड हैव गिवन यू सर्टेन क्वेश्चंस, आई शुड हैव गिवन यू सर्टेन क्वेश्चंस ताकि आपको एटलीस्ट इन फॉर्मूलाज की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती. ठीक है, बट अगर नोट्स में लिखा हुआ है तो भी अच्छी बात है. हाँ, अब मैंने इस टाइम पे क्वेश्चन आपसे पूछा था, राइट, दैट विच इज लार्जर इन मैग्नीट्यूड, like this is larger or this is larger. ठीक है, this was the question that I had asked. Now, since we didn't have the data, like we couldn't put the values and check कि कौन सा कम कौन सा ज्यादा होगा, and I had asked you to do it in a subjective manner. ठीक है, तो अब आप मुझे सोच के बता सकते हो कि कैसा ग्राफ रहेगा एंड उससे
कैसा आपका एरिया अंडर द कर्व रहेगा, ठीक है। थिंक ऑफ इट बाय योरसेल्फ वंस, देन आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विद यू। हाँ हाँ, मतलब वेरी गुड आयुष, इफ यू हैव like understood this concept from the point of view of entropy, तो अच्छी बात है। हालांकि मैंने एंट्रोपी पढ़ाया नहीं है आपको। हाँ हाँ हर्ष, आप देखोगे अभी, वही हम लोग अभी समझेंगे। एंड टू हेल्प यू मोर, एक बार आप विजुअलाइज करना, ठीक है, विजुअलाइज करना और इस पी एक्सटर्नल पर भी फोकस करना। विजुअलाइज कैसे हमने ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन किए थे, ठीक है। राइट नाउ मैं यहाँ पर ये एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ इसमें चलो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ दैट P external is equal to P final. Do you remember the sand wala example? If I remove the entire sand, then what is the pressure against which the expansion is happening? It was the atmospheric pressure, and that will be the final pressure that we'll be reaching. Correct? ठीक है, मान लो मैं पूरी सैंड नहीं हटाता, आधी सैंड हटाता हूं, तो भी what will be my P external? P external will be P ATM plus mg upon 2a, राइट। हाफ मैं अगर सैंड हटा रहा हूं तो ये मेरा P एक्सटर्नल रहेगा, एंड दिस इज व्हाट माय P फाइनल विल बी, है कि नहीं? दिस विल बी माय P फाइनल। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, नाउ with this hint, with this help that I've given you, you should be ideally able to now give me an answer as to which will have a greater area. You can try and draw the graph and then comment upon the area. एक बार कोशिश करो। हाँ, राइट पार्थ, राइट हर्ष, नहीं श्रेया, उल्टा। ऑल राइट, तो अब आप लोग देखो क्या आंसर आएगा, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द टू ग्राफ्स एंड देन कंपेयर। सो in case of reversible, it will be a hyperbolic change from initial to final, ठीक है, राइट। सेम इनिशियल से सेम फाइनल जा रहे हैं, reversibly as well as irreversibly. So in case of reversibly, as you can see, this will be the curve and area under the curve is what your work will be, correct? अब यहां पर नोटिस करना, सेम इनिशियल से सेम फाइनल जा रहे थे इरिवर्सिबल में, सेम इनिशियल से सेम फाइनल जा रहे हैं, सेम वॉल्यूम चेंज, वी इनिशियल से वी फाइनल जा रहे हैं, तो वर्क क्या था? वर्क इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, एंड यू रिमेंबर दैट पी एक्सटर्नल वाज इक्वल टू पी फाइनल ओनली। सो एरिया कितना आ गया? एरिया इज जस्ट दिस रेड पोर्शन. So can you now compare the two
and tell me which is bigger. Of course, reversible का area ज़्यादा आ रहा है. So what you can say is that magnitude of the work done in case of reversible was more than irreversible. ठीक है, and this was for what process? Isothermal expansion. समझ में आया? This was for isothermal expansion. This can be also spelled out in a bit fancy manner. ठीक है, notice करना the statement that I'm going to now talk about, and that is something which is an important statement for you to remember. In case of expansion, work is done by the system, right? This is something that we know by convention, that in case of expansion, work is done by the system. Now, to extract maximum work, okay, we would want to extract maximum work out of a process. So if you want to extract maximum work, then how should the process be done? The process should be done in a reversible manner, because it helps you extract the maximum work. Now, of course, in real life, no process is reversible, but yes, this is an idealization. As I talked about, this is an idealization, that this is the max that we can achieve. ये समझ में आया? Do we understand this statement now? Okay. Now, let's say you are doing isothermal compression. ठीक है, थोड़ा अंतर है, इसके लिए I have made it as a different point. आइसोथर्मल कंप्रेशन में कैसे रहेगा? Can you draw the graphs and can you compare isothermal compression में reversible work ज़्यादा होगा या irreversible work ज़्यादा होगा? ट्राई करो. नहीं, अभी तक तो सिर्फ एक हर्ष ने करेक्ट आंसर दिया है. हाँ, अभी यश ने भी करेक्ट आंसर दे दिया है एंड पूर्णा ने भी करेक्ट आंसर दे दिया है. ग्रेट. तो इसमें वापस से सेम ही थॉट प्रोसेस से सोचना है. ठीक है, द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, माइनस एनआरटी लॉन V2 by V1 एंड माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. अब इस केस में व्हाट विल बी योर थॉट्स अबाउट P एक्सटर्नल? लाइक इमेजिन आपके पास में लाइक ये गैस अभी 1 atm के प्रेशर पर है, राइट, एंड आपको इसको कंप्रेस करना है. ठीक है, इसे 10 atm तक लेके जाना है, राइट.
So you need to apply how much external pressure? P external should be equal to P final. Correct? तभी कंप्रेस हो पाएगा ना. मुझे 1 atm से 10 atm जाना है, तो मुझे 10 atm का प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ऑन दिस गैस, so that it compresses to the desired final pressure that I want. So वही चीज अब आप ग्राफिकली यूज करो, like use this thing again graphically and now give me an answer. इतना हिंट दे दिया मैंने आपको. इक्वल नहीं होगा बाबा. नहीं सार्थक. देखो ना, आप ड्रॉ करो दोनों ग्राफ्स एंड देन लेट मी नो. नहीं साहिल, नहीं सत्या, नहीं निशांत, क्या कर रहे हो तुम? देखो ना, दिस इज व्हाट विल बी द केस. कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है. हम यहां पर अब मेरा इनिशियल रहेगा. दिस इज माय इनिशियल नाउ. अ लार्जर वॉल्यूम एंड लोअर प्रेशर एंड आई विल बी गोइंग टू फाइनल. ठीक है, दिस विल बी माय फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल प्रेशर. ठीक है. जिसका आंसर गलत आ रहा था, आई एम श्योर दैट दे हैव मेस्ड अप विद इनिशियल एंड फाइनल. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग दिस प्रॉब्लम. कंप्रेशन कर रहा हूं ना बाबा मैं, तो this is how initial and final would be. So area under the graph, that will be my reversible work. What about area under the graph for irreversible process? Process तो मेरा just ये 2 dots रहेंगे, initial and final. This will be what I can draw the graph for. But work is minus P external delta V, and that P external was equal to P final, and the delta V I know, so I got my irreversible का भी work done. Now can you compare the two areas, which is more? You can clearly see that the area of irreversible is more than reversible. Correct? ये समझ में आया? Now, हाँ हाँ नहीं, irreversible में we are not defining a path. There is no path. Like कैसे इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं वो हमें पता ही नहीं है. ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ था वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट था. ठीक है, दिस इज व्हाट आवर ग्राफ वाज, जस्ट द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, जस्ट दिस एंड दिस. बट मुझे वर्क का फॉर्मूला तो मैंने डिराइव किया हुआ है. दैट वर्क का फॉर्मूला वाज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट, एंड पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी फाइनल. सो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी फाइनल. तो ये मेरा लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया, एंड दिस रेक्टेंगल is what my area is. That is my irreversible work done. ठीक है, ऊपर भी ऐसा ही करा था मैंने जब मैं irreversible के बारे में बात कर रहा था. My graph was just this initial and final point. ठीक है, वर्क का फॉर्मूला मुझे पता था, it was minus p external delta v. So delta v I had, that was v initial to v final. But p external क्या था, and that I got the understanding that p external was p final के बराबर, and then this length into breadth would give me this area.
That will be my work done का magnitude. ठीक है, that is what we have done here as well. So यहाँ पर what we found out was that the irreversible का area is greater than the reversible, hence the magnitude of the work done irreversible is greater than reversible. ठीक है, अब वापस से नोट करना और ध्यान से नोट करना इसका इंग्लिश. In case of compression, work is done on the system. ठीक है, surrounding is doing work on the system in case of compression. Now, what would we want as a more efficient practice? कि भाई कम से कम वर्क करें और हमें सेम ही रिजल्ट मिल जाए, लाइक सेम एक्सपेंशन या सेम कंप्रेशन हो जाए, लाइक एज सराउंडिंग. व्हाट डू वी वांट? ऊपर हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर ऊपर हमको क्या चाहिए था? एज सराउंडिंग वी वुड वांट कि सिस्टम ज्यादा से ज्यादा वर्क करके दे दे हमको. दैट विल बी द बेस्ट थिंग, दैट विल बी द मोस्ट एफिशिएंट थिंग. दैट ये सिस्टम जो है हमारा गैस है, ये हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क करके दे दे, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. ठीक है, एंड देयर वी अंडरस्टूड दैट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम वर्क द प्रोसेस शुड बी डन रिवर्सिबली. ठीक है, अब यहाँ पर मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ. ठीक है, कंप्रेशन कर रहा हूँ, राइट. एंड व्हाट आई वुड वांट कि यार कम से कम एफर्ट में आई अचीव द सेम रिजल्ट कि इतना कंप्रेशन हो जाए. So that's why my statement is changing now, that in compression work is done on the system to supply or to do minimum work. That is what I would want. That will be the more efficient thing कि कम से कम work करना पड़े. How should the process be done? The process should be done in a reversible manner, because then by doing less work you will be able to achieve the same change. ये समझ में आया? ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है अभी? पूछ लेना अगर किसी को कुछ डाउट है तो, लेट मी नो. So what is it that we are concluding from this? That reversible way is the ideal way, is the most efficient way. However, it's an, as I said, idealization. No real process is reversible in nature. But हाँ, मतलब we can make the process as close to reversible as possible. जैसे वो grain of sand वाला example था, तो पूरा का पूरा sand एक साथ हटा दिया तो वो irreversible हो जाएगा. But अगर मैं grain करके हटाऊंगा तो that will be a very close to reversible way of working. ठीक है, all right. अच्छा, अब थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ाते हैं. ठीक है, ध्यान से नोटिस करना. Oops. Let's try to answer this question. I am again asking you to compare the work done. And when I say work done, magnitude के बारे में बात कर रहा हूँ. In case of isothermal expansion. ठीक है, कैसा कैसा हो रहा है isothermal expansion? एक तो रिवर्सिबल मैनर है. क्या रिवर्सिबल मैनर है? कि V इनिशियल से V फाइनल जा रहे हैं और ग्रेन बाय ग्रेन सैंड रिमूव कर रहे हैं. लास्ट वाला क्या है? V इनिशियल से V फाइनल जा रहे हैं एक ही बार में, एक ही झटके में, सिंगल स्टेज. कैसा था ये? पूरा का पूरा सैंड एक साथ हटा दिया, लाइक वी रिमूव द एंटायर सैंड एट वंस. तो सिंगल स्टेज एक्सपेंशन हो गया. एंड नाउ I am also talking about multi-stage expansion. What is multi-stage expansion? In this case, for example, two stage. तो उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट्स से मैं पूरी सैंड एक साथ नहीं हटा रहा हूँ, पहले आधी सैंड हटा रहा हूँ, तो फिर V इनिशियल से कहीं V इंटरमीडिएट कहीं बीच में जाएंगे, एंड फिर उसके बाद मैं वापस आधी सैंड हटा रहा हूँ, V इंटरमीडिएट से V फाइनल जा रहा हूँ. So does that change my work? And if so,
then how does it increase, decrease, what will happen? Let me know. नहीं नहीं हर्ष, वैसा नहीं है जैसा आपने बोला ना। नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट नोइंग द पाथ। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन ये लिखा ना सामने सामने, आयुष, कंपेयर द वर्क डन in case of isothermal expansion. Please notice expansion हो रहा है. And these are the three cases that you'll have to compare. One was reversible expansion isothermally. The other two are irreversible. ठीक है, ये दोनों राइट हैंड साइड वाले irreversible हैं. बट irreversible में मैंने अब दो टाइप्स निकाल दिए. एक था सिंगल स्टेज की एक बार में वी इनिशियल से वी फाइनल जा रहे हैं, पूरा का पूरा सैंड एक साथ हटा दिया. एंड दिस मिडिल वन इज टू स्टेज, दैट लेट्स से वी इनिशियल से पहले आधा सैंड हटाया, ये कुछ वी इंटरमीडिएट गया और फिर आधा सैंड हटाया एंड देन गया. नहीं नहीं सार्थक, नॉट करेक्ट. नहीं हर्ष, नहीं पूर्णा, हाँ करेक्ट आयुष, नहीं शिवांक. नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ मैं यश. डोंट टेक द साइन, आई एम आस्किंग द मैग्नीट्यूड. नहीं शुभम, नहीं पार्थ. ये पार्थ, क्या तुम तीनों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना रहे हो क्या? सारे आंसर्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ. नॉनसेंस, इडियट. ऑल राइट, देखो ग्राफ से ही सोचना, मतलब ऐसे बैठ बैठ के तुक्के मत मारो भाई, मतलब जो तरीका बताया वैसे सोचो ना. थिंक फ्रॉम द ग्राफ पर्सपेक्टिव, ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ एंड देन कम अप विद एन आंसर. हाँ करेक्ट हर्ष. नहीं ऋग्वेद. ऑल राइट, चलो ठीक है. अब आप लोग देखो किस तरीके से ग्राफ रहेंगे. तो आपको लाइक फर्स्ट और लास्ट का तो ग्राफ पता ही है. ठीक है, आंसर मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर. द आंसर इज द फॉलोइंग वन, दैट रिवर्सिबल का वर्क विल बी ग्रेटर देन इरिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में मल्टी स्टेज विल बी मोर देन द सिंगल स्टेज. ठीक है, दिस इज द आंसर. बट हाँ, अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करना दैट हाउ द ग्राफ विल बी. ठीक है, अब ये तो मैंने कंबाइंड ग्राफ बना दिया. लेट मी ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ एक एक करके सबका एंड देन हेल्प यू अंडरस्टैंड कैसा रहेगा. गिव मी, ओके. अब आप यहाँ पे नोटिस करो
दैट रिवर्सिबल वाले में कैसा था? दिस वाज इनिशियल, दिस वाज फाइनल, ठीक है, एंड आपका ये वर्क आ गया था, करेक्ट? ये याद आ रहा है? अच्छा, व्हाट वाज हैपनिंग इन केस ऑफ irreversible single stage? This was your P external, which was equal to P final, right? And this was your work done. ये याद आया? अच्छा, अब मल्टी स्टेज में देखो क्या हो रहा है, ठीक है? मल्टी स्टेज में अब आप नोटिस करो, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ओवर है, दैट आप किसी इनिशियल से फाइनल जाने के पहले बीच में कहीं किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर भी जा रहे हो। तो अब आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो। पहले आप इस इनिशियल सिचुएशन से इस इंटरमीडिएट सिचुएशन पे जा रहे हो, करेक्ट? एंड इस इंटरमीडिएट सिचुएशन में, ठीक है, जो भी आपका P इंटरमीडिएट था वो आपका P एक्सटर्नल रहा होगा, एंड दिस वुड हैव बीन द वर्क डन, जो P इनिशियल से P इंटरमीडिएट जाना पड़ा था। एंड देन P इंटरमीडिएट से आपको P फाइनल जाना है, करेक्ट? तो उस पार्ट में P external would have been P final, right? Imagine like the sand example कि P initial was P ATM plus mg by a. P intermediate कितना होगा? It will be P ATM plus, let's say अगर हाफ सैंड हटा दी तो mg अपॉन 2 है, एंड P फाइनल क्या होगा जब पूरी सैंड हटा दूंगा? P ATM, करेक्ट? एंड जब इनिशियल से इंटरमीडिएट जा रहा होगा तब ये मेरा एरिया रहेगा। अब इन तीनों को अगर मैं सेम ही ग्राफ पर प्लॉट कर रहा हूं तो मैं कंपेयर भी कर पाऊंगा ज्यादा इजीली, ठीक है? सो दैट्स व्हाई here you have the graph of all three on the same, ठीक है? जो ब्लू वाला है that is representing the reversible, ठीक है? the red वाला is representing single stage irreversible, बट ये जो ग्रीन वाला है, अब आप नोटिस करना, ग्रीन वाला कौन सा है? ग्रीन वाला इज दिस वन। ये तो मेरा एरिया हो गया इनिशियल से इंटरमीडिएट, ठीक है, क्योंकि इसमें इनिशियल से इंटरमीडिएट जाना था तो ये मेरा फाइनल वर्क था, एंड जब मैं इंटरमीडिएट से फाइनल जा रहा हूं तब ये मेरा एरिया रहेगा। सो नाउ कैन यू सी हाउ इंटरमीडिएट इज इन बिटवीन द टू? दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, आई होप रिवर्सिबल तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? रिवर्सिबल इज दिस एंटायर एरिया अंडर द कर्व, राइट? रिवर्सिबल में किसी को प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है? अब आपको इरिवर्सिबल वाला सिंगल स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, राइट? बिकॉज इनिशियल से फाइनल जाना था एंड पी एक्सटर्नल पी फाइनल के बराबर होता है, तो दिस वुड हैव बीन योर एरिया, करेक्ट? इरिवर्सिबल सिंगल स्टेज वाला। अब जो मैं आपको समझा रहा था वो मैं आपको इरिवर्सिबल मल्टी स्टेज समझा रहा था। इरिवर्सिबल मल्टी स्टेज कैसे, मैंने आपको बताया यहाँ पर, बाय टेकिंग दिस एग्जांपल ऑफ द गैस एंड सैंड वाला, कि P इनिशियल तो P ATM प्लस mg by a है। अब अगर मैं आधी सैंडी रिमूव कर रहा हूं तो P इंटरमीडिएट मेरा क्या होगा?
PATM plus mg by 2a, that will be my P final while going from initial to intermediate. एंड उसके हिसाब से मैं एरिया निकाल रहा हूं, तो मेरा एरिया क्या दिख रहा था, दिस विल बी माय P फाइनल एंड दिस विल बी माय डेल्टा V, राइट. P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है ना. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हाफ द मास ही अज्यूम करो, मैंने जस्ट कुछ बीच का ले लिया. आप 3/4 कर लो, 1/4 कर लो, आई डोंट केयर, बट इट विल बी समथिंग बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. ठीक है. अब इंटरमीडिएट से फाइनल जाना है, राइट. सो इंटरमीडिएट से फाइनल जाना है तो क्या हो जाएगा, P final will be just PATM, like I will be removing the entire sand. ठीक है. And this will be what my P external will be. जब मैं इंटरमीडिएट से फाइनल जा रहा हूँ, तो इंटरमीडिएट से फाइनल मेरे को वॉल्यूम चेंज पता है. वॉल्यूम चेंज कितना है, V इनिशियल से V फाइनल. ठीक है. एंड P एक्सटर्नल कितना था, ये P फाइनल के बराबर. तो ये मेरा एरिया आप देख रहे हो, आप ब्लू और रेड के बीच में आ रहा है. इज दिस क्लियर? आप समझ में आया आप लोगों को हाउ दिस इज कमिंग? ठीक है. नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और मैं आपको सोचने में मजबूर करता हूँ. ठीक है. That do the same exercise for isothermal compression and let me know what will be the comparison of the work done. ठीक है. आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए करना, ये अभी एक्सपेंशन था. कंप्रेशन के लिए सोच के बताओ कैसा रहेगा. ठीक है. एंड हाँ, मतलब यहां से आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, आप सही बोल रहे हो यश. इनफाइनाइट स्टेज irreversible will be your reversible process. इनफाइनाइट स्टेज मतलब वही, आप ग्रेन बाय ग्रेन जाते जा रहे हो. समझ में आया यश? हम्म. हाँ, राइट आयुष. हाँ, राइट साहिल, राइट निशांत, राइट सार्थक. ठीक है. आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया है मोर और लेस कैसा रहेगा. हाँ, राइट श्रेया, राइट साहिल. नहीं नहीं शुभम, अभी आपने गड़बड़ आंसर किया है अभी भी. हाँ, राइट हर्ष, राइट निशांत. ठीक है. तो यही चीज़ आप ग्राफिकली वापस से नोटिस कर सकते हो कैसा रहेगा. ग्राफ बनाने का सोचो. ठीक है. आप लोगों ने आंसर दे दिया है. ठीक है. जिसने करेक्ट आंसर दे दिया है, ट्राई एंड ड्रॉ द ग्राफ. टेक अ मिनट और टू, तसल्ली से ग्राफ ड्रॉ करो and then we will compare whether you have got the correct graph or not. क्वेश्चन यही है पृथ्वीराज, मतलब सामने लिखा हुआ है ना, वर्क डन कंपेयर करना है इन केस ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन. नाउ वी आर डूइंग दिस आइसोथर्मल कंप्रेशन इन दीज थ्री वेज.
ऑल राइट, बना लिया ग्राफ आप लोगों ने? चलो ठीक है, आप कंपेयर करो। सो कैन यू सी नाउ? ठीक है, थोड़ा सा मिक्सड अप है बट हाँ, द ब्लू वन विल बी जस्ट अंडर दिस कर्व, अंडर द आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, दिस इज योर इनिशियल, कंप्रेशन कर रहे हैं क्योंकि, एंड दिस विल बी योर फाइनल। ठीक है, तो द ब्लू वन इज समथिंग विच यू विल नो क्लियरली, राइट? दिस विल बी द ब्लू वन। ठीक है, नाउ नोटिस करना the single stage expansion one. The single stage expansion one will be the same volume change, V initial से V final, but P external क्या होगा? P external will be P final, right? So this will be your irreversible work. ठीक है, तो ये दो तो आपको पहले से ही पता थे। अब आप मल्टी स्टेज वाले पर फोकस करो। मल्टी स्टेज वाले में आप नोटिस करना, आप पहले V इनिशियल से V इंटरमीडिएट जा रहे हो। ठीक है, so this is your delta V, and what will be your final pressure? It will be P intermediate. अगर आप V initial से V intermediate ही जा रहे हो तो that will be your final pressure and that will be your external pressure. तो ये V initial से V intermediate का इतना एरिया हो गया। अब फिर आप V intermediate से V final जा रहे हो तो this will be your delta V and your final pressure will be again this P final which will be your external pressure, and इन दोनों का sum is what your work is. समझ में आया? हाँ हाँ, मतलब so this is something which helps you understand, no, that if I think from the point of view of extracting work from system or doing work on system, right, then what is a more efficient way? ठीक है, तो जैसे engines एंड ऑयल के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का ही एप्लीकेशन रहता है। ठीक है, हाँ आप सेपरेटली भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको ड्रॉ करना है करो। मैंने एक में कर दिया बिकॉज लाइक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज कर सकता था टू शोकेस देम, एंड एक पे जब ड्रॉ करते हैं तो कंपैरिजन करना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, अगर मैं आपको डेटा देना शुरू कर दूंगा तो आप वैल्यूज निकाल के ही मुझे कंपेयर करके बता दोगे ना। इफ आई स्टार्ट गिविंग यू डेटा then you will get the values and get me the answer. For example, let me ask you this question. ठीक है, तो आप मुझे डेटा से बता दोगे, आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल बाद में कराता हूँ, पहले ये वाला एग्जाम्पल आप ट्राई करो। चलो बताओ इसके आंसर्स।
ऑलराइट, आंसर आने शुरू हुए आप लोगों के। लॉन 10 की वैल्यू 2.303 होगी ना यार, कैसी बातें कर रहे हो। लॉन 10 की वैल्यू नहीं आती तुम्हें अभी तक। लॉन एक्स लॉग एक्स का कन्वर्जन आता है, और लॉग 10 कितना होता है, 1। राइट, सो ये 47th वाले का आंसर रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, व्हाट अबाउट 48th वाले का। सिंगल स्टेज कंप्रेशन। आई थिंक दिस शुड बी सी। एंड ये 2 स्टेज इन दोनों के बीच में रहेगा, एंड आप कैलकुलेट करोगे तो ऑफ कोर्स आपको आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी बी ऑप्शन अगेन। ठीक है, डोंट आस्क मी अब कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैड डन इन द पास्ट आवर और सो। ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा और एफर्ट डालो और ट्राई करो। ठीक है, जस्ट पी डेल्टा वी, दैट इज इट, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। एंड ऑफ कोर्स ये आइसोथर्मल प्रोसेसेस है, तो पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल is something that we also used. ठीक है, हाँ नहीं नहीं, डोंट वरी अबाउट द लॉग वैल्यूज। आपको जनरली अच्छी वैल्यूज एग्जाम में एटलीस्ट अच्छी वैल्यूज मिलेंगी। होमवर्क में हाँ, यू माइट कम अक्रॉस not so good calculations, but yes, during the exam you should be able to solve them manually. हाँ हाँ, 2 स्टेज कंप्रेशन में आप दोनों स्टेज का अलग अलग कैलकुलेट करके उनको सिंपली एड अप कर रहे हो। करेक्ट। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, लॉग टेबल्स की जरूरत होती नहीं है भाई, जेई में लॉग टेबल्स वैसे भी अलाउड नहीं होता है। ठीक है, ऑल राइट, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, पी नॉट के टर्म्स में बताना है। नहीं नहीं, बीसी कैन बी डिटरमाइंड नाउ आयुष, यू कैन डिटरमाइन इट now that you have learned that area under the PV graph is work done, so you can determine it now. पी नॉट के टर्म्स में डिटरमाइन कर लो। बीसी का नहीं, विद साइन बताना है सार्थक, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ जस्ट रिपोर्टिंग द मैग्नीट्यूड्स, गिव मी विद प्रॉपर साइंस।
I will not accept answers without sign. अभी तक तो किसी का भी सही नहीं है. हाँ, अभी पूर्णा ने करेक्ट आंसर दिया है फर्स्ट पार्ट का, विच इज वर्क ड्यूरिंग द बीसी प्रोसेस. हाँ, अभी सार्थक आपने भी करेक्ट दिया है. नहीं स्नेहल, नहीं पार्थ, नहीं प्रत्याशा. अरे, ट्रपीजियम का एरिया निकालना नहीं आता क्या आप लोगों को? ये बीसी के नीचे क्या आ रहा है? ये ट्रपीजियम बन रहा है ना, इसका एरिया निकालना नहीं आता. नहीं यश, इनकरेक्ट आंसर्स. साइन कन्वेंशन में गड़बड़ हो गई आपकी. देखो, बीसी का तो आप निकाल सकते हो. ठीक है, बीसी का आंसर रहेगा -2 P0 V0. ठीक है, कैसे अब आप निकाल सकते हो? यहाँ पे अब आप नोटिस करना, हम लोग दो तरीके से जा सकते थे. लाइक एक तो जो हम लोगों ने फॉर्मूलाज याद करे थे, तो जो ए बी से स्टार्ट करते हैं. चलो, ए बी वॉज आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक का वी नो दैट द वर्क इज 0. एंड ऑल्सो एरिया अंडर ए बी, इफ आई कैलकुलेट, सो दैट विल बी अ वर्टिकल लाइन, उसके अंडर का एरिया इज 0. तो ये ए बी का वर्क आ गया. ठीक है, सी ए के बारे में फोकस करो. सी ए इज ऑल्सो समथिंग विच इज ऑफ अ फेमिलियर प्रोसेस. सी ए क्या था? सी ए वॉज आइसोबेरिक, राइट? सो यू नो द फॉर्मूला. वन फॉर्मूला विच यू कैन यूज इज दैट माइनस पी एक्सटर्नल डी वी. एंड क्योंकि रिवर्सिबल है तो पी एक्सटर्नल को पी गैस से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं. तो यू गॉट द आंसर ऑफ फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोबेरिक प्रोसेस विच वाज माइनस पी डेल्टा वी. अब माइनस पी डेल्टा वी में यहाँ पर जो एक गड़बड़ स्टूडेंट्स कर देते हैं इज दे डोंट cautiously put what is initial and what is final. ठीक है, यहाँ पर डेल्टा वी इज फाइनल माइनस इनिशियल. व्हाट इज फाइनल इन केस ऑफ सी ए? सी ए में 2 V0 was initial and V0 was final. ठीक है, that is what you substitute here, and you got the answer for the CA process as plus P0 V0. You could have also got the answer by area under the curve. ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ so that you can see the area under the curve. ठीक है, CA के अंडर का एरिया क्या रहेगा? It will be the area of this rectangle. रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? V0 और breadth है P0, तो V0 into P0, that's what you got as the area. And what about the sign? Because this area gives the magnitude of the work done. What about the sign? The sign will be positive. Why? Because यहाँ पर एक compression हुआ है. Compression मतलब work positive होता है. ठीक है, अच्छा, अब बचा आपका BC प्रोसेस. तो BC प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? अब BC प्रोसेस दोनों तरीके से आप कर सकते हो. ठीक है, एक तो फॉर्मूला से कर सकते हो. ठीक है, ये फॉर्मूला वाला आई डोंट थिंक मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट राइट अवे. ठीक है, बट आई विल लीव इट हियर. आई विल लीव इट फॉर यू टू ग्रास्प इट एंड देन लेट मी नो व्हाट डिड यू ग्रास्प. और you could have also determined work done of BC as the area under the BC curve which comes out to be a trapezium. राइट, ये ट्रेपेजियम आ रहा है ना यहाँ पर BC के नीचे का एरिया, B into C, as in B to C, this line is there, इसके नीचे का एरिया जो ये ट्रेपेजियम है. करेक्ट, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ into sum of the parallel sides into the distance between the parallel sides, right? So that magnitude comes out to be 2 P0 V0. But what do I put as the sign for this? What do I put as the sign for the BC का work? Is it expansion or compression? What is happening during BC?
BC के दौरान एक्सपेंशन हो रहा है, यू कैन सी द एरो। तो यहाँ पे द साइन विच आई विल पुट फॉर BC विल बी नेगेटिव साइन। सो ड्यूरिंग BC द वर्क इज -2 P0 V0। ठीक है, तो मेरा क्या क्या आ गया, AB के दौरान कितना वर्क है, CA के दौरान कितना वर्क है, एंड BC के दौरान कितना वर्क है। तो अगर मुझे पूरी साइकिल के दौरान वर्क निकालना है कितना है, तो आई जस्ट सिंपली ऐड देम अप। Work done during A to B to C to A will be AB plus BC plus CA. I put down those values which I had calculated ऊपर, and my answer would come out to be -P0 V0। जीरो नहीं आएगा नालायक, मैथ्स नहीं आती क्या? -P0 V0 आ रहा है। ठीक है, नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट लर्निंग हेयर। ठीक है, यहां पर नोटिस करना, एक और लर्निंग है आप लोगों के लिए, दैट फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस you can also apply this shortcut, that work done in a cyclic process. Why is this cyclic? Because it starts and ends at the same point. It will be area inside the cycle. Correct. So you could have just calculated the area of this triangle to get the work during this cycle. So you calculated the area of the triangle, it comes out to be equal to P0 V0। ठीक है, that will be the magnitude। अब साइन कैसे डिसाइड करते हैं, अगर साइकिल क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, एक्सपेंशन का वर्क ज्यादा होगा। अगर क्लॉकवाइज है साइकिल तो एक्सपेंशन का वर्क हमेशा कंप्रेशन से ज्यादा ही होगा। तो द साइन शुड बी एज यू कैन सी नेगेटिव। और अगर ये यही साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होती, काउंटर क्लॉकवाइज होती, तो कंप्रेशन का वर्क ज्यादा आता है एज कंपेयर टू एक्सपेंशन का वर्क, एंड देन आई वुड हैव पुट इन द साइन एज द पॉजिटिव साइन। ठीक है, so this is something additional learning for you via this question, that in case of cyclic processes the area inside the cycle will give you the work done। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ, ये वाला पार्ट आप चलो फिगर आउट करना खुद से कि ये यहाँ पर क्या करा है मैंने। समझ में आ जाएगा तो मुझे बताना, एंड हम लोग फिर बाकी क्लास के साथ में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ, आज के लिए इतना ही है। बोलो हर्ष। सर हमारा गैसेस का लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था पूरा। तो बताओ आज इस वीक लेट मी एक मिनट जस्ट लुक एट माय शेड्यूल। मेरा फोन कहाँ है यार? हाँ, एक मिनट। आप लोगों का अभी कौन से उसमें क्लास है? एक मिनट। लेट मी सी। हमारा कल 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 शाम को, कल आप लोगों का क्लासेस है क्या? सर डाउट लेक्चर है। डाउट लेक्चर है, कितनी बजे है? 3:30 to 8। 3:30 to 8। अच्छा, परसों? सर परसों क्लास नहीं है। तो परसों रख लें आप लोगों का गैशियस स्टेट का एक सेशन। ओके सर। ठीक है, मतलब क्योंकि हाँ, बाकी लोग भी बता दो भाई। साहिल, हाँ बोलो। तुम्हारा अनम्यूट नहीं हो रहा साहिल क्या?
हाँ सर। बोलो साहिल। सर संडे को रख सकते हैं ना? संडे को सर यार संडे को नहीं रहेगा, सुबह TWT है, फिर उसके बाद तो फ्री रहेंगे। नहीं नहीं, मेरा एक्चुअली क्लासेस हैं संडे को और भी थोड़ा पैक्ड है। संडे इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी। सैटरडे को ही रख सर सकते हैं, दैट विल बी बेटर। हाँ बोलो निशांत। सर ये जो संडे को TWT है उसमें शेड्यूल में दिया हुआ था कि गैस स्टेट और केमिकल बॉन्डिंग, तो हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग हो गया, तो हम लोग का गैस स्टेट आएगा क्या? नहीं तुम केमिकल बॉन्डिंग का लिखो, तुमने पिछली बार गैसियस स्टेट लिखा होगा ना। यस सर, बट हम लोग का हुआ नहीं था, तो हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग है। हाँ हाँ, तो तुम अभी केमिकल बॉन्डिंग लिखो, तुम लिखना है तो दोनों लिख सकते हो, लाइक नॉट ड्यूरिंग द सेम टाइम। एक विंडो में खुलता है ना एग्जाम, तो उसके बाद में आप गैसेस का भी दे सकते हो धीरे-धीरे। हाँ तो सैटरडे को रख लेते हैं। देखो सैटरडे को मैं आपको टाइम कन्वे कर देता हूँ। टाइम क्या सूटेबल रहेगा सैटरडे को? सैटरडे शाम को सेम 7 बजे रख लेते हैं। हाँ सर शाम को चलेगा, क्योंकि हम लोग का मॉर्निंग में लेक्चर्स रहेंगे कॉलेज के। है ना? हाँ सर। ठीक है, आप लोगों का टारगेट वो याद है लास्ट टाइम का कहाँ पे छूटा था गैसेस का? हाँ सर 5 और 6 लेक्चर्स हो गए थे, हम लोग को 7 और 8 देख के आने का था। तो फिर वो देखे हैं कि नहीं देखे? देखा है सर मैंने, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन। हाँ नहीं मतलब देख के आओगे तो फिर काम आएगा, मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो 2 लेक्चर में थोड़ी ना ऐसे 2 लेक्चर में पढ़ा दूंगा। हाँ बोलो आयुष। So I think morning time, wouldn't morning time be more apt? So, नहीं मॉर्निंग टाइम में आपका स्कूल वगैरह रहेगा ना? so I didn't hear you. So what were you saying? मॉर्निंग में स्कूल होगा ना आपका? सर मेरा स्कूल नहीं है सर, सर्टेन उसका शायद होगा सर। हाँ सर बिफोर 10:30 आप रख सकते हैं, 10:30 के बाद हमारे लेक्चर्स रहते हैं। अच्छा बिफोर 10:30 रख सकते हैं। सो क्योंकि इवनिंग टाइम मोस्ट प्रोबेबली जो होमवर्क होता है और सर सेल्फ स्टडी के लिए डिवोट, मैं बस एक आइडिया था। यार एक्चुअली वो सर आप नेक्स्ट डे TWT है तो उसके लिए शायद थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, इवनिंग में बड़ा मार्जिन मिल जाता है। हाँ नहीं वो बात आपका ठीक है, बट वही है सुबह सुबह के टाइम पे बाकी दोस्तों का कुछ क्लैरिटी नहीं रहता ना कि कौन कितनी बजे फ्री रहता है। अब किसी का कुछ हुआ कुछ क्लैश हुआ तो सुबह का रहेंगे, चलो शाम का ही रखो। देखो शाम का ही रखते हैं 7 बजे का। Okay sir, as per your convenience. चलो ऑल राइट देन, टेक केयर गाइस।